श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, गुरु जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिथे मस्या का दिहाड़ा है, साहिब जी महाराज किरपा कर सबना दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखन। आओ नाल दी नाल जो श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार कथा चल रही है, अज दी इस अष्टपदी दे विच सतगुरु जी महाराज नाम नूं जदों मनुख हिरदे विच धारण कर लैंदा है, या दूजे शब्दां च कहीए जदों परमात्मा का हुक्म मनुख नूं अनुभव हो जाता है, उदों फिर उसका लोक ते परलोक दोवें ही सुहेले हो जाते हैं। गुरमत दे विच जिथे लोक सुखी करन की गल कीती गई, नाल दी नाल परलोक दे सुहेले होण की भी गल कीती गई है। पर कमाल की गल यह है, लोक ते परलोक दोवां नूं सुहेले करन दा तरीका इक्को ही है। लोक दे विच दुनियावी पदार्थ ने, मानसिक शक्ति है ते अध्यात्मिक शक्ति है। परलोक दी वो अवस्था है जिथे आत्मा अपने निजी स्वरूप विच पहुँच जाती है, उसनूं परलोक कहा जाता है। भावें कि गुरबाणी विच परलोक नूं होर भी कई तरीक़िਆਂ नाल वर्णन किया गया है। महाराज कहते ने जदों मनुख परमात्मा की बंदगी नूं अपने हिरदे विच धारण करता है, परमेश्वर का जो हुक्म है, जिस हुक्म के अधीन ये सारा दुनिया चल रही है, और हर एक बाहरी दुनिया का टुकड़ा एक दूजे नाल जुड़िया होया है ते एक दूजे ते प्रभाव भी पाउंदा है। दुनिया की बाहरी जिन्नियां भी वस्तुआं ने वो एक दूजे दे नाल जुड़ियां हुई ने। हर एक चीज़ एक दूजे ते प्रभाव पाउंदी है। जे असीं रस्ते विचों लंघ के आए हैं, रस्ते दे विच जिन्नियां भी वस्तुआं ने, उन्हां वस्तुआं दी अपनी एक खिच है ते अपनी एक शक्ति है। भावें वो पत्थर ही क्यों ना होए ते भावें कोई जानवर ही क्यों ना होए, हरेक वस्तु के अंदर एक खिच है। वो वस्तु साडे ते प्रभाव पाउंदी है, साडा शरीर उस ते प्रभाव पाउंदा है। मैं तकरीबन इस चीज़ ते पढ़ रहा सी, जदों असीं प्रभाव की गल करते हैं और इस नूं होर गहराई विच वाचण का यतन करिए, कहते हैं सूरज है जिहड़ा वो 45 साल जवान हुंदा है ते 45 साल बुढ़ा हुंदा है। इस चीज़ का पता लगाया गया, दुनिया च एक बड़ी वड्डी नदी है, उसका नाम है नील। उत्थे एक बड़ा वड्डा संत होया इजिप्टियन दे विच
ਫੈਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਫੈਰੋਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਥਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਰੋਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 4000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਆਈ 45 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਸੂਰਜ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ? 45 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 45 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੁੱਟੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਹਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਉਤਲੇ ਉਤਲੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਸੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੋਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਧਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
और मनुख ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ गलत समझ लिया है, या दूजे शब्दां 'च कह लीए इन्हें जिंदगी विच गलत मन लिया है। इस करके इस नूं अपनियां मनोतां ने जिहड़ियां वो तोड़दियां पैणगियां। जिस दिन का जन्म होया, जो जो माँ बाप कहते रहे, दुनिया कहती रही, या इसके अपने दिमाग में भी जो आया, मनुख उन्होंने मनता ही गया। वो सही है या नहीं है वो इनू नहीं पता। जो सही है वो इनू नहीं पता सही की है, पर जो जो दसिया घरदियां ने वो मन लिया। महाराज कहते ने मनना तो है, पर मनना सिर्फ परमेश्वर नूं है। जो दुनियावी तौर पर मन्निया है उन्होंने अरेज करना पएगा, उन्होंने नष्ट करना पएगा। तो दुनियावी तौर पर मन्निया की है? मनुख ने अपने तौर पर मन्निया है मेरी ये जात है, मेरा ये वाला वर्ण है, ये मेरा धर्म है, मैं बलवान हाँ, मैं कमज़ोर हाँ। ये चीज़ां बलवान ते कमज़ोर शरीर है, जीवात्मा नहीं। जो अंदरों शब्द बोलता है, जो असी बोल रहे हैं, जिहड़ी बोलण की शक्ति है ये जीवात्मा की है। जो बाहरी तौर पर शरीर ते एक यंत्र है जो सानू मिलिया होया है, कादे लई मिलिया है? असी दुनिया ते कुछ कमा सकीए, कन्नां दे नाल रब दी बाणी सुनीए, और ये जिहड़ा दिमाग मिलिया है इहदे नाल विचार कर सकीए। हर एक चीज़ नूं डूंघे स्तर ते विचार सकीए, ये शरीर तां मिलिया है। मैं कल भी बेनती की, कोई शरीर रोटी पानी खाण दा साधन नहीं है। ये विच रोटियां खादियां पच गईयां, शक्ति आ गई, अगे जाके बूढ़ा हो गया, दवाइयां खा लियां, ये वास्ते शरीर नहीं है। शरीर का काम कुछ होर है। जे शरीर का काम सिर्फ इन्ना ही है, फिर तो शरीर का कोई फायदा नहीं है। जे इस शरीर का काम इन्ना ही है, रोटी खानी है, पचानी है, थोड़ा शक्ति आ गई, बाहर कमा लिया, कमा के खा लिया, बस इन्ना ही काम है, या कुछ बना लिया, जे इन्नी शरीर का काम है, फिर तो शरीर का कोई फायदा ना होया। इन्ना काम नहीं है। बाणी कहती भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया। जीव आत्मा परमात्मा नूं मिल जाए, इहदे लई जीवन मिलिया है। इस करके रब का नाम जपिया लोक भी सुधरदा है ते परलोक भी सुधरदा है। परमात्मा की बंदगी नाल लोक की समझ भी वधदी है, परलोक की भी वधदी है। और एक गल होर याद रखना, जो मनुख का मन है ना, इसने जो जो भी मन्निया होया है, उन्हां रसां दे विच इसदा मन वंडिया होया है। ताई करके मन एकाग्र नहीं हुंदा, क्योंकि मन वंडिया होया है। ये कोई किसी का 9 थावां ते वंडिया, किसी का 10 ते वंडिया, किसी का 50 थावां ते वंडिया, मन वंडिया पिया है। इस करके 5 मिनट भी किते रब का नाम जपीए या अखां बंद करके बैठिए ना, 5 मिनट भी अखां बंद नहीं होंदियां, कदे जोर ला के वेखना 10 मिनट भी नहीं होणगियां। कारण की है? मन काला पै जाता है। जिहड़ा मन अंदर है ना, जिहड़ा वंडिया, उन्होंने बाहर वेखण नूं दिल करता है, फटाफट वंडिया होया ना। ये जदों फिर बंदगी चलती है, थोड़ा थोड़ा खत्म होना शुरू होता है, थोड़े थोड़े संस्कार खत्म होंदे ने, अपना अभिमान खत्म हो जाता है, कुल का अभिमान खत्म हो जाता है, माया का अभिमान खत्म हो जाता है, शरीर का अभिमान खत्म हो जाता है। जदों हौली हौली ये खत्म होना शुरू होया, फिर मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन एकाग्र हो गया, उस दिन इनू ज्ञान हो जाना, उस दिन समझ आ जानी है। जदों तक एकाग्र नहीं होएगा, उदों तक कोई समझ नहीं आनी। उदों तक तो जैसा जन्मिया, जैसा घरदियां ने कीता सी,
जो जो कुछ दसिया सी उवें चलता रहा सारी उम्र। जीवन तो शुरू होया बुढ़ेपे तई आ गया, समझ कोई भी नहीं, दैवी गुण कोई भी नहीं अंदर, ना दया ना धर्म ना संतोख, कुछ भी नहीं। कारण की बनया इसका कारण इक्को बनया, क्योंकि जो कुछ ये है सी इन्हें मन्निया ही नहीं, गुरु के शब्द नहीं सुने, कदे कोई बंदगी नहीं की, बदला आया ही नहीं। इस करके बहुते लोग जैसे दुनिया से आते ने अणपछाते आते ने, अणपछाते ही चले जाते हैं, नेफल जिंदगी गवा के चले जाते हैं। और ये वास्ते ना एक बड़ी सोहनी साखी है। जिमें एक भगत सी, उन्हें बड़ी मेहनत के नाल परमात्मा नूं प्रगट कर लिया। परमात्मा ने प्रगट होकर उन्हें हीरा दे दिता। हीरा लैके बड़ा कुछ राज तुरया है, अगे ठग मिल पे, कहते कित्थे चला है, ने हीरा मिलिया, कहते कित्थे चला, कहते फलाने देश में चला। ठग कहते असी भी उत्थे ही जाना है। उन्हें हिसाब लगा लिया, बड़ा खुश है, ये कुछ है कि जेड़ा जो मनुख नूं कुछ मिलता है ना दुनियावी तौर पर खुश होंदा है, जदों उहदे कोल कुछ विछड़दा है उदों रोंदा है। दो ही काम ने। जे कोई मनुख उदास है ना, उहदा एक ही कारण है, या तो कुछ विछड़ गया है या इनू लग रहा विछड़ जाना है। दो ही गल्लां ने। वो पदार्थ भी हो सकते हैं, वो घर के जी भी हो सकते हैं, वो धन भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मनुख की उदासी का कारण ही ये है। खुशी का कारण की है, दुनियावी तौर पर कुछ मिल गया है, ये खुशी का कारण है। एक होर भी मैं बेनती करा, जिन्होंने अध्यात्मिक तौर पर भी कुछ मिल जाता है, वो भी आनंदित हो जाते हैं। ठगा ने हिसाब लगा लिया, क्योंकि ठग इतों ही हिसाब लगाते हैं मनुख का। उन्हें हिसाब लगा लिया, तो कोल कुछ है, लैके तुर पे। उन्होंने 5-4 दिन नाल रहे, राह लम्मा सी, पैदल ही लोग जाते होंगे सी। ठगा हिसाब लगा लिया, बाकी सारा कुछ छड़ देता है, गोदड़ी नहीं छड़ता, ये कुछ है। रात को सोवे तां भी गोदड़ी नूं नाल ही सारा कुछ सराहने थले रख ले। एक दिन ठग कहते हैं चलो दुकान तो सौदा लै आइए, लैन चले गए, वापस आ गए लैके। हिसाब किया भी 20 कौडियां का सौदा बनया है, 19 कौडियां का सौदा बनया, उन्हें साढ़े तो 20 ले लिया ने। उन्होंने कहते हैं भगत नूं तू भज के जा, तो उन्हें मुकर जाना एक कौडी, तो हिसाब करा ला उहदे नाल जाके। वो भज्या बेचारा हिसाब कराउण दे लई, अपनी गोदड़ी लैके भजन लगा, कहना इन्नी जे गोदड़ी लैके भजेंगे इन्हें इत्थे मुकर जाना, इन्हें गोदड़ी इत्थे ही रख जा। भज के गया उधर, हिसाब कराया, वो भी 20 पूरे, वापस आया, हीरा भी गा, गोदड़ी लैके भी भज गए ठग। हुण इहदा मतलब ये है, वो कौडियां भी नहीं रहियां ते हीरा भी नहीं रहा। भाव ये है, मनुख ने जिदन दुनिया तो जाना है, ना तो ये शरीर रहना, तो शरीर नाल जो कमाया भी नहीं रहना, तो ना हीरे वर्गा ही जन्म रहना, दोवें खत्म हो गए। ये शरीर नूं, ये मनुखा शरीर नूं जिन्हां चीज़ां करके सारी उम्र लाई रखिया, अंत दे विच वो भी खत्म हो जाणियां ने, वो भी नाल नहीं जाणियां। कोई शरीर जिहड़ा लै जाण वाला उन्हें ही नहीं जाना, शरीर भी तबाह हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर जिहड़ियां चीज़ां कमाईयां वो तो रह गई इत्थे। इनू कहते हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। लोक भी गया तो परलोक भी गया। लोक में जो कमाया वो भी गया, कोई शरीर के नाल जाना ही नहीं कुछ भी। तो जिहड़ा परलोक सी वो तो गया ही गया, क्योंकि कदे रब का ना ही नहीं जपिया, परलोक च उहनूं की मिलना जाके गए। महाराज एक गल कहते हैं, कहते ये मत जानना भी जिहड़ी जीव आत्मा असी, क्योंकि जदों असी अपने आप नूं वेखदे हां, जो कहने फलाना सिंह, असी अपना नाम लांगे साड़ी अपनी तस्वीर आ जाएगी शरीर की। शरीर दे नाल मन बड़ा ज़्यादा जुड़ गया है। शरीर की संगत कर करके अपने आप को शरीर ही समझण लग गया है। इस करके बस शरीर के तल ते जो मिलता है इनू खुशी हो जाती है, वो तल ते विछड़ के दुखी हो जाता है।
मन की है, मन का तल की, ये बारे कभी जानिया नहीं। जीव आत्मा की, कभी जिग्यासा ही नहीं पैदा हुई। कारण कि यह हजे शरीर दीयां जरूरतों में फसिया होया है। जदों ती ये पूरियां नहीं होणगियां, इस तो अगे जाना ही नहीं मनुख ने। सतगुरु जी महाराज कहते ने, मनुखा अपनी जिंदगी का ख्याल रखी भाई। परलोक दे विच जिस दिन तू जाना है, क्योंकि जाना इत्थों जरूर है। जिंदगी नूं जिवें असीं गड्डी दे विच पेट्रोल पाउने आ ना, डिसाइड है भी 5 लीटर पाया तो 100 किलोमीटर चलेगी। 1000 रुपये का पा दिता है, कितने 20 लीटर पा दिता है तो इसने 500 किलोमीटर जाना है। ये जोड़े साह ने ये पेट्रोल का ही काम करते हैं। जिन्ने के पे हुए ने 19 किलोमीटर ने जाना है। असल में उस तो बाद तो गड्डी रोकी जानी है। फिर उस तो बाद फिर ये नहीं, शरीर के खत्म होने के नाल जो माड़े कर्म किए ने वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कदे भी। जो विकार मनुख ने कमाए ने, किसी को माड़ा बोलिया है, मंदा सोचा है, माड़े संस्कार बने ने, वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। जो मनुख ने कमाया है वो ये नाल ही चलना है। फिर उहदे हिसाब नाल इहनूं बार बार जन्म मिलते रहने ने। फिर इस करके अपनी जिंदगी है, इत्थे जो मर्जी कर सकता है। इसनूं शरीर मिलिया है, शरीर के तल ते जो मर्जी कर सकता है। भावें तो इस शरीर नूं खाण पीण दे विच ही खत्म कर ले, भावें इस शरीर नूं खाण पीण दे नाल बंदगी विच भी लगा ले, दोवें काम इकट्ठे भी कर सकता है। पर मनुख मोह ते माया दे विच फस के, माया दी ममता दे विच फस गए। मैं कल भी ये बेनती की सी, बाणी दे विच महाराज ये नहीं कहते माया छड्डो, क्योंकि माया छड्ड दी तो संसार किवें चलेगा। शरीर नूं चलाउणा है तो माया की जरूरत है, परिवार चलाउणा है माया की जरूरत है। माया नहीं छड्डनी है, माया का मोह नहीं होना चाहिए, भावें ये कोल अरबां रुपये होण। गुरु नानक साहब महाराज ने गुरबाणी के पहले शब्द में ये गल कही। सतगुरु जी कहते ने, मोती ता मंदिर उसरै है, रतनी ता होहे जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। परमात्मा जी ये नहीं मैं कह रहा, गुरु नानक साहब भी मैनू माया ना बख्शी, घर ना बख्शी। कहते घर भी बख्श, भावें उहदे विच हीरे ही जड़े होण, चंदन का लेप भी होया होए घर दे विच। जिवें अज रूम फ्रैशनर होंदे ने, उदों चंदन का लेप हुंदा सी। ये सारा कुछ ही होए, पर इन्हां पदार्थां दे विच मेरा मन ना फस जाए तो मन तैनूं भुल जाए। उन्होंने भुलना की है? वकारां दे विच फिरना। उसकी भुल की है? अब अक्सर कहते हैं वो परमात्मा नूं भुल गया है। परमात्मा नूं भुलण का मतलब दया नूं भुल जाना, संतोख नूं भुल जाना, धर्म नूं भुल जाना। जिस अंदर दया नहीं है वो धर्मी नहीं है, वो धर्म नूं भुल चुकिया है। साहब जी कहते हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर और धार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच प्रिखिया। पूरे गुरु की पूरी सिक्ख्या है, जिस दे अंदर गुरु की सिक्ख्या वस जाती है, फिर उसनूं सच का अनुभव हो जाता है। वो सच नूं जान लैंदा है। जिन्हों मुकम्मल तौर पर गुरु की गल समझ में आ गई, उसकी पहचान की है, उन्होंने सच समझ में आ गया। जदों सच समझ में आउंदा है, हुक्म समझ में आउंदा है, गुरबाणी ने फिर उसका उदाहरण दिता है। महाराज कहते हैं जिन्हों हुक्म समझ में आ गया, परमात्मा समझ में आ गया, बुझ लिया जिन्हें हुक्म नूं, उसकी पहचान की है? नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कहे ना कोई। जिसने हुक्म नूं बुझ लिया, फिर होमे दे विच कुछ भी नहीं कहेगा। उसकी होमे खत्म हो जाएगी, वो करता नहीं रहेगा, भुगता बन जाएगा। भुगता भी नहीं रहेगा,
कहेगा परमात्मा को, कहेगा तू आप ही दाता है, आप ही भिखारी है। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। ऐसी गल मनुख फिर परमात्मा नूं कहंदा है। जिवें जिवें परमात्मा दा नाम विच पैंदा जाएगा, गुरु की सिक्ख्या अंदर वसदी जाएगी, मनुख दे अंदरों करता भाव खत्म होंदा जाएगा। करता भाव रोज़ रोज़ जिवें जिवें परमात्मा दा नाम अंदर वसदे जाना है, वसद्या वसद्या मनुख दे अंदरों करता भाव खत्म हो जाना है। करता भाव का मतलब मैं करन वाला हाँ। असीं बड़ी वारी ये चीज़ नोट करते हाँ, आम तौर पर जो मनुख बजुर्ग हो जाता है ना, उसदे कोल ये गल सुनन नूं अवश्य मिलती है। कहते असीं जवानी दे विच इन्ना कुछ कमाया, वेख लो इन्नियां मल्लां मारियां ने, हुण बजुर्ग हो गए, मल्लां हजे ते नहीं छड्डियां। वो हंकार है सूक्ष्म रूप च, अपने आप ते लै गया सारी चीज़, जो भी कमाया उन्होंने अपने आप ते लै गया। बाणी कहती है तू नहीं कमाया है, यही तो तेरा, यही तो दिक्कत है। इसे चीज़ ने तो परमात्मा तो दूरी पाई हुई है। इसे चीज़ करके तो आनंद नहीं आ रहा अंदर, क्योंकि जो चीज़ मैं कमाई है, फिर जो माड़ी जी भी इधर उधर होएगी तो नाल ही दुखी होएगा। ये गल याद रखना है। जो मैं कमाया है, जो माड़ा जा भी इधर उधर हो गया नाल ही दुख होएगा। जो परमात्मा दा है उहदे विच काहदा दुख। सतगुरु जी महाराज इस करके कहते हैं, गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या है जदों मनुख के अंदर वस जाती है, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच प्रिख्या। उन्हें सच नूं समझ लिया, अनुभव कर लिया। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते भो जाए। सतगुरु जी कहते हैं, परमात्मा के हुक्म नूं, परमात्मा के नाम नूं मन ला के जपो, उहदे नाल मिलेगा कि दुख चले जाणगे, दर्द चले जाणगे ते डर चले जाणगे। मनुख नूं डर काहदा है, मेरा शरीर ना चला जाए, ये सब तो वड्डा डर है। कई बार कहते हैं फलाना बदमाश है, वो तो डरदा ही नहीं। जो पकड़िया जाता है ना, तो वो सिर पर जो बंदूक रखी जाती है, सब तो पहला डरदा है। जे उहदे विच डर ही नहीं है, फिर किसी को मार के लुकदा क्यों फिरदा है? जे डर ही नहीं है, जे मनुख है जिहड़ा अपने आप दे विच कहंदे हुण बड़ा निरभौ है, बाणी कहंदी निरभौ वो है जिन्हें निरभौ नूं ध्याया है, और कोई निरभौ नहीं है। असीं वेखदे हां बड़ी तौर ते चोर ने, बदमाश ने, डाकू ने, वो तो डरदा ही किसी तो नहीं। जे डरदा नहीं फिर चार लोगों को मार के फिर लुकदा क्यों फिरदा रहिंदा? कितों लुकदा है? आ डर नहीं तो होर लुकना डर है, फिर शरेआम फिरे दुनिया च नहीं फिरिया जाता। डर है, हर एक मनुख के अंदर डर है, और ये जिहड़ा डर है यही नरक है। जिस मनुख नूं जदों डर हुंदा है ना, फिर डर दे विच दरवाजा भी खड़क जाए ना, तां भी मनुख अंदर दिल दहल जाता है नालों नाल। ये डर है, तो डर हरेक मनुख दे विच हुंदा है। डर तो वड्डा नरक कोई नहीं दुनिया ते। इस करके जदों तई मनुख परमात्मा का नाम नहीं जपदा, डर खत्म नहीं होंदा। एक तो डर है जिंदगी ना खत्म हो जाए, दूजा डर है पता नहीं मैनू रिजक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कुछ मेरे को है किते ये ना चला जाए, ये भी डर है। जो कुछ मेरे को जमीन है, खेत है, पैली है, दौलत है, किते चली ना जाए, ये भी तो डर है। जदों तई ये भी डर बनया है, उदों तई मनुख नरक विच जी रहा है। ये दोवें डर बाणी कहंदी खत्म हो सकते हैं। मौत का डर ते रिजक का डर, दोवें डर खत्म किवें होणगे? जदों मनुख सच नूं जाण लएगा, इस नूं पता लग जाना है जो कुछ हो रहना है वो रहना ही रहना है। दुनिया का कोई भी मनुख जोर लगा ले, जे मेरे शरीर ने रहना है तो कोई मार नहीं सकता। बाणी ये कहती है, जिस उन्हें समझ आ गई जदों तई शरीर ने जिउंदा रहना है उदों तई रहना ही रहना है। दुनिया के किसी भी मनुख दे विच
ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਨਿਚਿੰਦ ਬਿਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਆ, ਔਖਦ ਆਵੈ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੈਲਫ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਲੱਸੀ ਵੇਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਵੇਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲਬਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਓ ਪੂਛਣਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਿਆ ਵਰਜਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਣਕ ਅੱਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਆ ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੈਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ।
इस करके बाणी कहती किसी के हथ में कुछ नहीं है, इत्थे सब कुछ परमात्मा के हथ में। जहाँ जहाँ भाणा तहाँ तहाँ राखे नानक, सब कुछ प्रभ कै हथ है। फिर इस करके जेड़े परमात्मा नूं प्रसन्न करते हैं, उहदी बंदगी करते हैं, परमात्मा खुशी दे विच आए उन्होंने राज भी बख्श दिंदा, उहदी मर्जी है। इस करके बाणी कहती है जेड़े उसका नाम लैंदे ने, उहदी बंदगी करते हैं, उन्हां ते प्रसन्न रहिंदा है। अंत दे विच महाराज कहते हैं सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगाह निभै खेप तुम्हारी। हे व्यापारी, मनुख नूं कहंदे ने तू व्यापारी है। जिवें व्यापारी जाते हैं ना दूजे देश में व्यापार करन, तो उत्थों कुछ ना कुछ खट के लियाउंदे ने। असीं व्यापारी हाँ, इत्थे आए हाँ, ये दुनिया दे विच व्यापार करन आए हाँ। जाको आए सोई बिहाज हो, बाणी कहंदी है जिहड़ी चीज़ वास्ते आए हाँ उहदा व्यापार करिए। हर गुर ते मन्हे मसेरा, निज घर महल पावहो सुख सहजे, बोहर ना होएगो फेरा। ये दुनिया के उत्ते व्यापार करन आए हैं, लिमिटेड टाइम है। तो सानू फिर जे व्यापार करन आए हैं, फिर मनुख दे कोल कोई ना कोई पैसा भी तो मिलना चाहिए। रब ने पैसा किहड़ा दिता है? आसां। ये जेड़े साह ने इन्हां दे नाल व्यापार करना है। व्यापार काहदा करना है? रब दे नां दा। ताई बाणी कहंदी सास सास सिमरो गोबिंद। इन्हां साहां दे नाल व्यापार काहदा करना है? रब दे नां दा। जिदण साह खत्म हो जाणगे, जिन्ना क व्यापार करांगे उन्नी क सानू अगे दरगाह विच मनुख नूं सुविधावां मिल जाणगियां। बाणी ये कहंदी है जिदण नाम जप के जावांगे, रे रे दरगाह कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शुभ देओ। दरगाह दे विच कोई भी उन्होंने रे रे नहीं करेगा, शुभ आदर उन्होंने प्राप्त होएगा। अंत दे विच महाराज कहंदे ने एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवह जाहे। एक परमात्मा की टेक, उहदा ही विश्वास अपनी जिंदगी च रखिए, फिर दोबारा दोबारा जन्म ते मरण इस दुनिया ते नहीं होएगा। दोबारा दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, नहीं बार बार शरीर मिलता रहिंदा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान। हुण कल नूं असीं बाणी दे विच यही शब्द अगला, तिसते दूर कहाँ को जाए, उभरै राखण हार ध्याए। उस परमात्मा तो दूर कोई किवें जा सकता है, इहदे ते विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान। सतगुरु जी महाराज की कृपा करन। जिन्ने सतसंगी आप आउंदे हो, सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण। सबनां नूं नाम दी दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ दी दात बख्शण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।